یہ میرا فرسٹ ٹائم ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے اور یہ شیعہ کتنی محنت کرواتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا, یعنی آپ کو پیدل جانا پڑتا ہے. تو اس کربلا کے اندر اتنا منظم ایونٹ, میں سمجھتا ہوں یہ شیعہ کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. دنیا کی ایک منظم قوم میں ان کو دیکھ رہا ہوں. اور میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم نجف سے کربلا مشی کر رہے تھے, تو ہمیں اس راستے میں آپ جن شخصیت کو دیکھ رہے ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے. ہم نے کہا کہ ان سے گفتگو کریں. السلام علیکم مصطفیٰ, کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی فضل ہمدرد صاحب, آپ خیریت سے؟ الحمدللہ, شکر اللہ کا. کیسے آنا ہوا قبلہ ایک دم سے اچانک, اور وہ بھی اس راستے میں جہاں پہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی؟ نہیں, کیوں توقع نہیں کی جا سکتی آپ کو؟ یہ کیا صرف مطلب یہاں پر امام حسین علیہ السلام کے لیے جانا یہ صرف کیا آپ لوگوں کا کام ہے؟ کیا ہم سنی نہیں جا سکتے؟ نہیں, ایک آپ ابھی بھی کسی بھی ظاہر سے پوچھیں گے نا, وہ آپ کو ایک دفعہ تعجب سے دیکھے گا, وہ کہے گا مفتی فضل صاحب یہاں پہ کیا کر رہے ہیں. اب یہ مینٹلٹی ہے. چلیں, یہ جو تعجب ہے نا, اسی کو تو ختم کرنا ہے نا. یہ اس تعجب کو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک سنی وہ محب اہل بیت نہیں ہو سکتا, یا یہ ہے کہ صرف اہل بیت سے محبت کرنا یہ صرف شیعہ کا ہی کام ہے, اسی تعجب کو اور دوری کو ختم کرنا ہے. مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم قبلہ آپ تشریف لائیں نا, آپ بھی آئیں. اب دیکھیں, اب حضرت ہیں, انہوں نے لباس جو ہے سیاہ لباس پہنا ہے, ایک امامہ پہنا ہے, ایک مخصوص ان کا لباس ہے, ٹھیک ہے, اور میں نے یہ سیاہ لباس نہیں پہنا ہوا. تو کیا ہم یعنی ہمارے جذبات میں کوئی فرق پڑ جاتا ہے اس لباس پہ نہ پہننے سے یا دوسرا لباس پہننے سے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح ہے. امام حسین علیہ السلام وہ شیعہ کے بھی ہیں, سنیوں کے بھی, بلکہ کل انسانیت کے ہیں. اگر کسی کو اس پہ تعجب ہوتا ہے کہ ایک سنی اس لشکر میں کیا کر رہا ہے, میں سمجھتا ہوں ہمیں اس مفہوم کو درست کرنے کی ضرورت ہے. صحیح ہے. اس تعبیر کو درست پیش نہیں کیا گیا. بس آج لوگ یہی سمجھتے ہیں, اور ہمارے اہل سنت میں بھی یہی ہو گیا ہے کہ اگر اہل بیت کا نام آتا ہے حضرت تو یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو صرف شیعہ کے ساتھ خاص ہے. اور بس ایسی لگ گئی ہے, چھاپ لگ گئی ہے. انشاءاللہ اس چھاپ کو ختم کرنا ہے. چلے انشاءاللہ خداوند متعال ہم کو کامیاب کرے. دیکھیں گے ایک وقت آئے گا شہباز بھائی, یہاں پہ آپ لوگوں سے زیادہ سنیوں کی تعداد ہوگی انشاءاللہ. یہ واقعا جو آپ نے ابتدائی بات کی نا, چاہیے نہیں ہونا چاہیے. امام حسین, آپ نے ویسے ایک بڑا درد دل مجھے لگ رہا ہے کہ بیان کیا کہ امام حسین فقط آپ شیعوں کے ہیں, جو یہ آپ کا جملہ تھا واقعا بات ہے. آپ کہتے ہیں آپ یہاں کیا کر رہے ہو. ہاں نہیں, اب میں نے آپ سے کہا, ابھی بھی ہم چلتے ہیں, پوچھتے ہیں زائرین سے کہ آپ کو دیکھ کے وہ ایک دفعہ تعجب لازمی کریں گے. صحیح ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے, لیکن اس کا انشاءاللہ خاتمہ کرنا ہے ہمیں. چلیں انشاءاللہ. اس سوچ کو, اس نظریے کو کہ صرف اور صرف ایک شیعہ ہی وہ اس لشکر کا سپاہی ہو سکتا ہے یا اس لشکر میں جا سکتا ہے. اب دیکھیں, ہم نے رات 9 بجے سے ہم نے مشی کا آغاز کیا. یعنی آپ کی جرنی جو شروع ہوئی ہے وہ 9 بجے ہے؟ 9 بجے شروع, کل رات. ویسے تو ہم جمعہ کے دن فرائیڈے کو یہاں پہ پہنچ گئے تھے. اچھا. نجف اشرف کے اندر. اور میرے لیے آپ کو بتاتا چلوں کہ کعبۃ اللہ, مدینہ منورہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں, مسجد اقصی, اس کے بعد میرے لیے سب سے افضل ترین مقام امام علی علیہ السلام کا روزہ نجف اشرف. سبحان اللہ. اس کائنات کے اندر سب سے افضل مقام میرے لیے. تو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے. اور دیگر علماء اہل سنت بھی یہاں پر آئے ہیں. تو یہاں پر جب جمعہ کے دن ہم آئے, تھوڑا ایک دن آرام کیا. ایسی بات ہے, آپ کو پتہ ہے رش زیادہ ہے آج کل, فلائٹ کا شیڈول بھی ہے. تو کل 9 بجے ہم نے امام علی علیہ السلام کی مزار پہ حاضری کے بعد یہ سفر شروع کیا پیدل آنے کا. اچھا. تو پیدل کہ یہ میرا فرسٹ ٹائم ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے, اور یہ شیعہ کتنی محنت کرواتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے نا, یعنی آپ کو پیدل جانا پڑتا ہے, اور ہمارے سنیوں میں نا اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. صحیح. تو تھکاوٹ تو ہوگی, لازمی بات ہے. پیدل ہم آئے ہیں تقریباً 9 بجے جب ہم روانہ ہوئے, تو اگلے دن 11 بجے ہم یہاں پہ پہنچے. آپ کو کتنا لگا, کتنے کلومیٹر آپ نے پیدل سفر کیا ہے؟ یار یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے. تو کل راستہ جو ہے نجف سے لے کر کربلا المقدسہ تک وہ 85 کلومیٹر ہے. صحیح. اسی طرح کا ہے. تو ایک یعنی اتنے گھنٹے ہم پیدل چلے. درمیان میں لازمی بات ہے ہم نے تھوڑے سے رکے ہیں, کچھ کھایا پیا ہے, اور یہاں پر جو یہ تقسیم کر رہے ہیں, جس فراخ دلی کے ساتھ تقسیم کر رہے ہیں, اس کو ہم نے الحمدللہ اس سے استفادہ بھی کیا, کچھ کھایا پیا. اچھا, یہ جو آپ نے میرے خیال میں میکسیمم 20 کلومیٹر بن جائے گا, یا آپ پیدل چلے 20 کلومیٹر, ہم ایک اندازہ لگا لیں. اب نے کبھی سوچ زندگی میں کبھی آپ 20 کلومیٹر پیدل چلے؟ اتنی مشقت ہم نے نہیں کی ہے, اتنی جو جس کو کہتے ہیں, لیکن بہت لطف آیا, بہت لطف آیا ہے. پانی, گرمی ہے, پیاس لگی ہوگی. ہاں
गर्मी है, खाना, रिहाइश, आग का मौसम है। रिहाइश भी कोई इतनी कोई वो नहीं होती जो आपको कोई खास इसको कह सकते हैं जैसे आपको घर में मैसर होती है। आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ पर आते हैं। लेकिन एक बात है कि यहाँ के लोगों का जज्बा देखकर मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। यार ये लोग ना अपने दिलों से अहले बैत को चाहने वाले, ये दिल से इनके अंदर अगर हम देखें ना, हम शायद ये समझते हो कि बनावट करते, बनावट नहीं करते। छोटे छोटे बच्चे, इस 43 टेम्परेचर है, लोग अपने घरों से लेके आए हुए, आप देखें ना, और इस रश के अंदर, इज़्दिहाम के अंदर वो जा रहे हैं, गर्मी को बर्दाश्त कर रहे हैं, धूप को बर्दाश्त कर रहे हैं, घर से दूर हैं। वो आराम नहीं है जो घर में मैसर होता है। एक मकसद के लिए सभी एक समत में जा रहे हैं, एक ही तरफ जा रहे हैं। सही। और वो ये है इमाम हुसैन का रास्ता। क्या बात है, इमाम हुसैन का रास्ता, कि इमाम हुसैन हमें जमा करते हैं इस रास्ते में, उनकी कुर्बानी का याद करते हैं कि उन्होंने जो कुर्बानी दी इंसानियत के लिए। इमाम हुसैन किसी मजहब के भी नहीं है, बेशक, पूरी इंसानियत के लिए, चाहे उसका ताल्लुक किसी मजहब से या अगर किसी मजहब का भी नहीं है इंसान, लेकिन वो जालिम नहीं है, मजलूम है, इमाम हुसैन उसके लिए भी। क्या बात है, बेहतरीन। सबके लिए। अच्छा, अभी हम चलते हैं, विजिट करते हैं कि आप हमारे जितने भी बिलखुसूस बरादरान अहले सुन्नत हैं, जिन तक शायद सही पैगाम ना पहुंचा हो कि ये जो एक प्यादा रवी है, जो एक मशी है, ये एक पैदल सफर है, इस पे क्या एहतमाम होता है? सुन्नी भाइयों से कहना चाहता हूँ, इस वक्त करोड़ों लोग यहाँ पे करबला में मौजूद है, करोड़ों लोग। मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ यहाँ पे, यानी लोगों का एक काफिला आता है और फिर वो दोबारा नजर नहीं आता, जा रहे हैं लोग, मुसलसल जा रहे हैं, एक सफर में है। तो इस करबला के अंदर इतना मुनज़्ज़म इवेंट, मैं समझता हूँ ये शिया की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। दुनिया की एक मुनज़्ज़म कौम मैं इनको देख रहा हूँ। और मैंने यही लिखा था यूट्यूब के ऊपर कि यहाँ से हम सीखेंगे, करीब से देखने का मुझे मौका मिल रहा है शिया कौम को और इस मसलक को जानने का, इनके अफकार और नजरियात, इनके रस्म व रिवाज का, इनके तौर तरीके को मालूम हो कि आखिर इतने अरसे, सदियों से इनके साथ जुल्म हुआ है, सदियों से, और यानी जबर हुआ है, तशद्दुद हुआ है, लेकिन फिर भी ये लोग बाकी हैं। क्या वजह है? तो वो मुझे बहुत यहाँ पे आगे करीब से मालूम हो रहा है कि बच्चा वो एक तरबियत के अमल से गुजरता है। मैंने यहाँ पे उलमा को देखा, वो लोगों को पानी पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, लोगों के पैर दबा रहे हैं, मेरे पैर दबाए हैं यहाँ पर। उलमा इस खिदमत में ड्यूटी पे असर अंजाम लगे हुए हैं। हजरत भी है यहाँ उलमा में से, ये भी यही ड्यूटी कर रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं, पानी। तो ये दरअसल वो बातिनी तस्किया नफ्स है कि दूसरों की खिदमत करने का जज्बा इनके अंदर पैदा हो। कि जब मैं समझता हूँ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़माना हो या वो ज़माना कि जिसमें इनके हाथ में इक़्तिदार हो, तो ये ऐसा निज़ाम कायम करे जिसके अंदर कुल इंसानियत के लिए रहमत और शफ़क़त हो और सबको खिलाया जा सके। ये एक बिल्कुल मंजर है कि लोग अपने घर का सामान बाहर निकाल रहे हैं, लोग अपना खाना पेश कर रहे हैं, लोग अपनी पूरी खिदमत यहाँ पे दे रहे हैं कि भाई आओ हमारा खाना खा लो, जो हम पेश कर रहे हैं, पानी पी लो, हाथ जोड़ के कहते हैं कि खुदा के लिए हमारे यहाँ पे आराम कर लो, हमारे घर में ठहर जाओ। यार ये इससे बड़ी अदल इलाही की मिसाल क्या हो सकती है? क्या बात है, खुदा के अदल को इन लोगों ने इन अवामी सतह के ऊपर कायम किया है। क्या बात। देखिए, हुकूमती सतह के ऊपर आप करोड़ों लोगों को खाना खिला सकते हैं, बड़े बड़े NGOs, रिफाई इदारे मौजूद हैं जो लोगों को खाना खिलाते हैं, मदद करते हैं पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन कोई मुल्क ऐसा नहीं है हजरत हुसैन कुर्बानी का जो अवाम करे, अवाम निकल के लोगों की खिदमत करे, ऐसा कोई मुल्क नहीं है। और इस महंगाई के दौर में अवाम यानी निकलती है और वो अवाम आकर लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लोगों के सामने जो है वो अपना सब कुछ जो उनके पास है उसको खाने पीने को, माल को वो पेश कर देते हैं। तो अवाम के अंदर ये जज्बा किसने पैदा किया? हुकूमत तो खुद कर सकती है लोगों को खाना खिलाना, लेकिन अवाम के अंदर ये जज्बा डालने वाले, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी इन लोगों की ये कामयाबी है कि जो इन्होंने हासिल की। इस कामयाबी के अंदर मैं समझता हूँ कि इसमें शिया के नज़्म का एक बड़ा किरदार है। जबरदस्त। चलिए थोड़ा मुख्य विजिट करवाएं नाजरीन को। बिल्कुल। और यहाँ पे अच्छा, अब लाजी बात है, रास्ते में जो लोग जा रहे हैं वो थकेंगे भी, उनको आराम करने के लिए जगह है, तो मौक़िफ़ होते हैं, यानी ठहरने की जगह पे। मौक़िफ़ किसे कहा जाता है? यानी हाँ, वहाँ पे मौक़िफ़ से मुराद ये है कि वहाँ पे जहाँ पे आप रुकते हैं, जहाँ पे आप ठहरते हैं, आराम करते हैं, इस्तिराहत करते हैं, वो जगह। और फिर यहाँ इराक के अंदर मुख्तलिफ कबाइल हैं, तो हर एक ने अपने कबीले के नाम पर या आइम्मा के नाम पर या सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम के नाम पर मौक़िफ़ के नाम रखे होते हैं कि आप वहाँ पर आएँ, आपको फ्री में खिदमत पेश की जाती हैं, आपको इंटरनेट दिया जाता है, आपके पैर दबाए जाते हैं, आपको खाना पीना, आपको बेहतरीन
सहूलत के साथ यहाँ पर ठहराया जाता है ताकि आपकी थकान कम हो और फिर आप नए सिरे से दोबारा से इस लंबे सफ़र का आगाज़ करें और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर जाकर पूरी इंसानियत के लिए आप रहमत और शफ़क़त की दुआ मांगें। यहाँ पे मुफ्ती साहब चाय पाकिस्तानी, हाँ चाय, पाकिस्तानी चाय आपने पी है वैसे अभी तक? चाय मैंने देखें, चाय इधर से आ जाएं। चाय पीनी, आ जाओ चाय पिलाएंगे भाई? जी मुफ्ती साहब, हाँ, चाय पिलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये चाय है, क्योंकि ये पाकिस्तानी मौके पे तो यहाँ पाकिस्तानी तरीके पे आपको ये चाय मिलेगी और चाय पेश की जाती है, गरम गरम चाय है, ठीक है। और इसी तरह ये यहाँ पे चाय का दूसरी जगह पर कहवों का आपका मिलेगा, खानों का आपको मिलेगा और फ्री, सब कुछ फ्री है। जैसे है ना कि वो क़यामत से पहले वो क्या है कि ज़मीन अपने खजाने उगल देगी, सही, ठीक है। तो ये यहाँ पर इराक में अपने खजाने उगल देती है इन मौके के ऊपर कि आप जो कुछ हमारे पास है आप लें और इसको इस्तेमाल करें। चले खाने के मेरे ख्याल में यहाँ पे टाइम, चूंकि मगरिब की नमाज हो चुकी है, सही है, और नमाज के फौरन बाद खाना होता है। चले तो ठीक है, किबला गेट जरा करवाएं। ठीक है। इन्होंने तहैया किया कि ये भी इस मशीन में शामिल होंगे और कल से इन्होंने मशी शुरू की है मुफ्ती साहब ने, और आज ये हमारे पास पैदल चले हैं नजफ से करबला, ये पैदल आए हैं, यानी पैदल जा रहे हैं। अभी रास्ते में एक जगह पे रुके हैं और मुफ्ती साहब के पाँव जो हैं वो बहुत दर्द कर रहे थे, तो एक जगह पर मुफ्ती साहब को हम लेकर आए हैं। आप ये देखें, मशीन में मुफ्ती साहब के पाँव हैं और ये मसाज है एक तरह से। और यहाँ पे एक वॉलंटियर हैं जो इस मौके पे खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनसे पूछ लेते हैं मुफ्ती साहब से कि कैसा फील कर रहे हैं अभी, और यहाँ पर जो उनकी खिदमत हो रही है इस हवाले से मुफ्ती साहब की क्या तासुरात हैं, वो खुद मुफ्ती साहब से पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। इस सफ़र के अंदर लाज़मी बात है, इंसान बशर है, थकावट हो जाती है। आप पैदल सफ़र कर रहे हैं, 85 किलोमीटर्स का ये सफ़र है और तपिश और हरारत इतनी ज़्यादा है। इराक़ का मौसम, टेम्परेचर कल 43 था, तो हम चूँकि कराची के आदी हैं, कराची में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 30 तक जाता है और वो भी ज़्यादा अगर गर्मियाँ होती है, तो ये इससे हमारा एक साबका पड़ा। लेकिन यहाँ पे अहले इराक़ की मोहब्बत देखकर और इनकी वॉलंटियर खिदमत देखकर, जिस तरह ये अभी देखें मैं थका हुआ हूँ लेकिन ये मसाज भी यहाँ पे करा रहे हैं, दबा रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं ज़ायरीन के लिए, ये बिल्कुल उनके लिए अपनी पलकें बिछा देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ कि ये सबको बिला रंग नस्ल मज़हब सबकी खिदमत करते हैं, खाना खिलाते हैं। और इस सफ़र में जो चीज़ देखा इंशाल्लाह बहुत सारी जगहों पे मैं शेयर करूँगा आपके साथ मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर, लेकिन मैं इनको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेडिकल कैंप लगाया हुआ है, लोगों को दवाई दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं और उनकी खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमानों के दरमियान में इसी तरह के प्यार मोहब्बत को बढ़ाए, मेरी ये दुआ है।